میں گانے سن رہا ہے اے لوگوں، ایک نہیں، دو نہیں، 5 یا 10 بار نہیں، بلکہ میں جتنی بھی بار تقریر کرتا ہوں ہر بار یہ ضرور کہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، گانا نہ سننا، گانا نہ سننا۔ میرے آقا ناراض ہوتے ہیں، میرے آقا ناراض ہو جاتے ہیں ایسے شخص سے جو گانا سنا کرتا ہے۔ اے لوگوں، اگر تمہیں موبائل میں اگر کچھ سننا ہے تو نعتیں سنو۔ اے لوگوں، اگر تمہیں کچھ سننا ہے تو تقریر سنو۔ اگر تم کچھ سننا چاہتے ہو تو قرآن مجید کی تلاوت سنو۔ تلاوت سنو اگر کچھ سننا چاہتے ہو۔ تم نبی کے غلام ہو، تمہاری ہر ادا ایسی ادا ہونی چاہیے کہ تمہیں دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے۔ ارے مسلمانوں، جس اللہ والے کی تم محفل میں بیٹھے ہوئے اس کی بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ارے شیدی میاں سے محبت کرتے ہو اور یہ اکرام کا نعرہ لگاتے ہو، تمہیں معلوم ہے شیدی میاں کی زندگی کے بارے میں مجذوب تھے، مجذوب، لیکن آؤ مسلمانوں، وہ کسی سے نہیں کہتے تھے اے لوگوں تم نماز پڑھا کرو۔ مجذوب تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو اپنی بھی فکر نہ ہو۔ مجذوب تھے، جاذبیت ہر بات تاری رہا کرتی تھی، لوگ دیکھا کرتے تھے، دیکھ کر کے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ یہ معمولی شخص نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہے۔ ان کو دیکھ کر کے لوگ تائب ہو جایا کرتے تھے، مسجدوں کی زینت بن جایا کرتے تھے۔ ارے بتانا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں، شیدی میاں کو دیکھا تو لوگ نمازی بن گئے، خواجہ غریب نواز کو دیکھا تو لوگ متقی و پرہیزگار بن گئے، بغداد کے راجا غوث اعظم کو دیکھا تو لوگ ولی بن گئے، اور جب میرے آقا کو دیکھا تو لوگ صحابی بن گئے، اور جس نے میرے آقا کو دیکھا اس نے اندازہ لگایا جب مدینے کے آقا کا یہ عالم ہے تو حبیب رب ذوالجلال کا عالم کیا ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم تو بیدار رہیں گے، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو مسلمانوں، تمہاری شان یہ نہیں تھی بلکہ تمہاری شان تو یہ تھی، تمہاری شان تو یہ تھی کہ لوگ تمہیں دیکھ لیا کرتے تھے تو دیکھ کر کے پہچان لیا کرتے تھے یہ مدینے والے کا غلام ہے، یہ مدینے والے کا غلام ہے۔ تمہیں دیکھ دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ کون سی برائی ایسی ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں ہم سٹا کھیلنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں؟ کیا ہم سٹا لگانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں؟ اب شروع ہونے والے میچوں میں دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کتنا سٹا لگتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذا وقعت لقمة من الحرام، کہ جب پیٹ میں انسان کے حرام سے ایک لقمہ پہنچتا ہے مسلمانوں تو عبادت کا نور ختم ہو جایا کرتا ہے۔ مسلمان کیا سمجھ رہا ہے؟ تو سٹا کرتا ہے، سٹا لگاتا ہے، سٹے میں نوٹ کماتا ہے، تو غور کیا کبھی اس سٹے کی کمائی سے تو اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے؟ کون سا خون بن رہا ہے اس بچے کے رگوں میں مسلمانوں؟ وہ خون، جس خون کو تو بنا رہا ہے وہ سٹے کی کمائی کھلا کر کے مسلمانوں۔ ایسے بچے کبھی وفادار نہیں ہوتے ہیں۔ اے لوگوں، اگر یہ چاہتے ہوئے بچے وفادار ہوں تو ان کو حلال کمائی کھلاؤ، حلال لقمے سے بچا لو، انشاءاللہ تم دیکھو اگر بچوں کے والدین سچے ہوتے ہیں، سچے ہوتے میں بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں، اگر باپ سچا ہوتا ہے، ماں سچی ہوتی ہے تو بیٹا سچوں کا امام سے آدم بن جایا کرتا ہے۔ مسلمان کو بتانا یہ چاہتا ہوں، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے مسلمانوں، سٹا تم لگا رہے ہو، جوا تم کھیل رہے ہو، اور شراب تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید قرآن میں یا حدیث میں جائز ہے تکفیر شراب کے بارے میں مسلمانوں مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جس شراب کے بارے میں میرے آقا نے سخت وعید فرمائی، مسلمان اس کو حلق کے نیچے اتار کیسے لیتا ہے؟ میرے آقا فرماتے سنو مسلمانوں، سنو اور کان کھول کر کے سنو، دل کی تختی پر نقش الحجر کر لو، سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں، ہمیشہ شراب پینے والا جب اس کا انتقال ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو بھی مسلمانوں اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ توبہ کرو مسلمانوں، توبہ کرو، آگ لگا دو ان شراب کی بھٹیوں پر، جلا کر کے راکھ کر دو ان شراب کی بھٹیوں پر۔ ایسے لوگ شراب کا دھندا کرتے ہیں، تعلقات ختم کر دو، معاملات بند کر دو، گھر میں آنا جانا بند کر دو، اور بتا دو کہ ہم کسی سے معاملہ رکھیں گے تو نبی کے غلام سے معاملہ رکھیں گے، ہم
آدم کے سچے وفادار سے معاملہ رکھیں گے. شراب کے کاروبار بھی ہو رہے ہیں, شراب بھی بیچی جا رہی ہے اور تعلقات خراب نہ ہو جائیں, تعلقات معاملات دعا سلام میں کمی نہ آ جائے. شراب بک رہی ہے برابر. مسلمانوں تم کہاں پہنچا رہے ہو؟ تم خود بھی گناہ کے کام میں لگے ہوئے ہو. اپنے باپ کو تم نیکی کے راستے سے بھٹکا, اپنے بھائی کو نیکی کے راستے سے بھٹکا کر نہ جانے تم کہاں لے جانا چاہتے ہو. ارے تمہیں تو یہ چاہیے تھا اپنے بھائی کے پاس جاتے, اس کو بتاتے سمجھاتے, میرے بھائی تو شراب پیتا ہے, یہ شراب اتنی بڑی اتنی حرام چیز ہے, اتنا بڑے گناہ کا کام ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں شراب پینے والے کو جب قیامت کے دن وہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ بلاؤ اس شرابی کو. شرابی آئے گا, کہا جائے گا لاؤ جہنم کا کھولتا ہوا پانی, جہنم کا کھولتا ہوا پانی لایا جائے گا. کہا جائے گا کہ پی دنیا میں شراب پیا کرتا تھا, آج قیامت کے دن یہ کھولتا ہوا پانی پی, وہ پینا چاہے گا, اس کو قریب کرنا چاہے گا, اس جام کو جیسے ہی قریب کرے گا وہ اتنا گرم اور سخت ہوگا کہ اس کے ہونٹ چل کر کے اس کی جو باریک باریک کھال ہوتی ہے اس جام میں گر جائے گی. پھر کہا جائے گا کہ پی, وہ زبردستی پیے گا تو جیسے اس کے پیٹ میں وہ شراب یا وہ کھولتا ہوا پانی جب پہنچے گا تو اس کے پیٹ میں چھترے ہو جائیں گے, اس کی آنکھیں ادھر پورا کر پھینک دی جائیں گی, اس کے پیٹ کے ٹکڑے ہو جائیں گے, یہ بے قرار ہو جائے گا, یہ تڑپ جائے گا اور کہا جائے گا مولا معاف کر دے. کہا جائے گا مولا معاف کر دے. مولا فرمائے گا کہ میرے حبیب کا فرمان موجود نہیں تھا, کہ میرا قرآن موجود نہیں تھا, جب میرے قرآن میں نے تجھے منع کر دیا تھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ, اے مصطفیٰ یہ تمہارے مقتدی تم سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں, تم سے جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. اللہ کے حبیب سے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ, اللہ نے فرمایا مصطفیٰ یہ تمہارے مقتدی تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ شراب جوا کیسا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اے حبیب قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, آپ فرما دیجئے مصطفیٰ کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ. جوا کھیلنے میں بھی فرمایا بہت بڑا گناہ. قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ, صرف اسم نہیں فرمایا کہ گناہ ہے بلکہ اسم کے ساتھ کبیر صفت بھی لائی گئی کہ گناہ نہیں کہا بلکہ فرمایا کہ گناہ ہے لیکن بہت بڑا گناہ ہے, اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ, میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں, تم بھی نبی کے غلام ہو, تم بھی نبی کے غلام ہو, لیکن وہ بھی نبی کے غلام تھے کون؟ جو سرکار کے سچے عاشق تھے, سرکار کے سچے صحابی تھے, سرکار سے محبت رکھتے تھے, وہ بھی غلام تھے. آؤ مسلمانوں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ابتدائے اسلام میں شراب حرام نہیں تھی. جب ابتدائی زمانہ تھا اسلام کا تو شراب حرام نہیں تھی بلکہ لوگ شراب پیا کرتے تھے. کھجور کی نبیذ حدیث شریف میں ذکر آتا ہے, اس کا کھجور کی نبیذ تھی, اس کی شراب پیا کرتے تھے. گیہوں اور جو لوگ بنا کر کے شراب پیا کرتے تھے. شروع میں شراب حرام نہیں تھی, لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل فرمایا, مصطفیٰ اپنے مقتدی اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجیے, اپنے امتیوں سے فرما دیجیے کہ شراب حرام ہے. مسلمانوں جیسے ہی میرے آقا نے یہ فرمایا تھا, اور عربوں کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں مسلمانوں, آواز کھینچ رہا ہے آج, ویسے بہت اچھا بولا لیکن مائک تھکا رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, سنیے مسلمانوں, وہ عرب کہ جن کے بارے میں یہ مشہور تھا, روایت پڑھیے آپ, تاریخ پڑھیے مسلمانوں, تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ عرب کا زمانہ کیا زمانہ تھا. ان کی گھٹی میں شامل تھی شراب. آپ سب کچھ چھڑا سکتے تھے ان سے, لیکن آپ شراب نہیں چھڑا سکتے تھے. وہ شب بڑے ہوا کرتے تھے. تو آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے ہمارے گھروں میں پانی پینے کے لیے برتن رکھے جاتے ہیں, گھڑے رکھے جاتے ہیں, واٹر کولر رکھے جاتے ہیں, بالکل اسی انداز میں مسلمانوں, بالکل اسی طریقے پر ان کے گھروں پر پانی نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ پانی کے جو مٹکے ہوا کرتے تھے اس میں پانی نہیں بلکہ شراب ہوتی تھی. شراب مسلمانوں, ان کو پیاس لگتی تھی وہ شراب پیتے تھے. وہ بے قرار و بے چین ہوتے تھے تو اپنی بے قراری اور بے چینی کو شراب پی کر کے دور کیا کرتے تھے. وہ شراب پیتے تھے. مطلب یہ کہ بچپن کا زمانہ شروع ہو گیا, شراب شروع ہو گئی, بچپن سے لے کر کے جوانی تک شراب پی رہے ہیں. جوانی بڑھتی گئی, بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے رہے لیکن شراب نہیں چھوڑی, شراب پیتے رہے. یہاں تک کہ جو کفار تھے, کفار انہوں نے کہا تھا
कि ये जो नबी के सच्चे गुलाम हैं, जो अभी अभी नया नया इस्लाम लाए ना, तो उन्होंने एक इस्लाम से बरगलाने का तरीका कि इनको इस्लाम से हटाया कैसे जाए, इनको काफिर कैसे बनाया जाए। तो जो काफिर थे अबू जहल अबू लहब, उन्होंने मालूम है क्या कहा था? बोले अरे इनको शराब पिला दो, शराब तो इनकी महबूब रिदा है। जिस तरीके से आपकी हमारी बिरयानी रिदा है कि बिरयानी की खातिर सब कुछ छोड़ देते हैं मुसलमानों, इसी तरीके से उनकी रिदा शराब थी। कहा इनको शराब पिला दो, बस शराब पिला दोगे तो कुछ भी करवा लो। लेकिन आओ मुसलमानों, तारीख बताती है वो नबी के ऐसे गुलाम थे मुसलमानों, वो सिर्फ नारा नहीं लगाते थे, वो सिर्फ मोहब्बत का दावा नहीं करते थे, बल्कि मौके वारदात पर उसको साबित करके भी दिखा दिया करते थे। फौरन जब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए लोगों, आज से अल्लाह ने शराब हराम कर दी है, तो तारीख बताती है फौरन उन नबी के गुलामों ने वो मटके तोड़ दिए कि जिसमें शराब थी, वो जाम फेंक दिए कि जिसमें शराब थी, और कहा ए मुस्तफा सुनो सुनो, आज के बाद हमारे लफ्ज़ तो क्या, हमारे हाथ भी शराब को नहीं छुएंगे। ए लोगों सुनो सुनो, उसी नबी के ताजदार, उसी मदीने के आका के सच्चे गुलाम हो। अगर सच्ची गुलामी है तो तोड़ ऐसे जाम को, अगर ऐसी सच्ची गुलामी है तो तोड़ इस तरह से लोगों को शराब बेचते हैं, तो शराब पिया करते हैं मुसलमानों। अगर तुम्हें किसी से रिश्ता रखना है तो नबी के सच्चे गुलाम से रिश्ता रखना है। बस मुसलमानों, इस्तीफा इसलिए करना चाह रहा हूँ, मैं बात अपनी तरफ लाना चाह रहा हूँ कि जिम्मन बात आ गई इसलिए बताना जरूरी है मुसलमानों। किन किन मसलों को लेकर के रोया जाए हजरात के सामने। एक सट्टा तुम्हारा समाज का एक अहम मसला बन गया, जुआ तुम्हारे समाज का एक अहम मसला बन गया मुसलमानों, शराब तुम्हारे समाज का एक अहम मसला बन गया, कब्रिस्तान की बेहुरमतियां करना ये तुम्हारा मसला बन गया। अरे मुसलमानों, जिंदगी के कौन कौन से मोड़ पर तुम्हारी रहनुमाई की जाए, किस किस चीज के बारे में तुम्हें बताया जाए, कब समझोगे मुसलमानों? आज तुमने कुरान को छोड़ा, आज तुमने हदीस रसूल से मुंह मोड़ा, तो तुम जमाने में हर तरफ जलील और रुस्वा नजर आ रहे हो। दर्स कुरान को अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। ऐ लोगों, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बनेगा, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, तुम्हारी ये हालत देख करके कि ना समझोगे तो मिट जाओगे, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। अरे मुसलमानों, समझो समझो। देखो, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, मेरा हक है तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, मैं मेरे भाइयों में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम मेरी दिल की आवाज समझो समझो मेरे भाइयों। देखो, तुम कुरान के मानने वाले हो, तुम नबी से मोहब्बत करने वाले हो। अरे तौबा कर लो, आज से तौबा कर लो, नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ, वो से आलम के सच्चे शहदाई बन जाओ, सीधी मियां से सच्ची उल्फत करने वाले बन जाओ। और बता दो, हमने वो छोड़ दिया जो किया करते थे, सीधी मियां हमने जुए को तलाक दे दी, आका हमने आपके फरमान की खातिर सब कुछ छोड़ दिया, आज से हम सच्चे मुसलमान बन गए, आज से हम कुरान पढ़ने वाले बन गए। अरे बता दो, साबित करके दिखा दो कि हम कोई नबी के गुलाम है कि जिस तरीके से जमाना अरब में तारीख बताती है उन्होंने शराब के मटकों को तोड़ दिया था। तुम भी बता दो कि हम भी आज से ये सब कुछ छोड़ देंगे, तलाक दे देंगे, मुंह मोड़ देंगे, रिश्ता तोड़ देंगे। समझो मुसलमानों। फिर मुझे और भी खुशी हुई, हाफिज राशिद साहब की जो जलसा हुआ था, उस जलसे में गाने वाले को लेकर बात कही थी, तकरीर कही थी, हालांकि उसमें कुछ बुराई भी आई थी कि मौलाना बिलाल साहब बिलासपुर के जितने भी कंप्यूटर है उन कंप्यूटरों से जाकर के गाने खत्म कर रहे हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है। या रसूल बल्लिग मा उनसिला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। अल्लाह सिर्फ इतना इरशाद फरमाता है, रसूल को भी यही हुक्म था, ए हबीब जो हम तुमसे इरशाद फरमाते हैं वो लोगों तक पहुंचा दो, बल्लिग 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 पहुंचा दो, मा उनसिला इलैका मिन रब्बिक जो हम आप पर नाज़िल फरमाते हैं पहुंचा दो। व इन लम तफअल, और आपने बता भी दिया, समझा भी दिया, सब कुछ कर दिया, तो फिर भी ना माने, फिर भी ना माने, फमा बल्लगता रिसालता, तो आपने तो अपनी रिसालत पहुंचा दी, आपने तो बता दिया। मुसलमानों, हमारा हक है, हमसे पूछा जाएगा कि तुम मोहल्ला श्रीजी मियां की बस्ती में रहते थे, तुम्हारा हक था लोगों पर, हमने तुम्हें कुरान की समझ अता फरमाई थी, हमने तुम्हें हदीस रसूल के बारे में बताया था, तो तुमने क्यों नहीं समझाया अपने भाइयों को, तुमने क्यों नहीं बताया उनको जो तुम्हारे साथ रहते थे, जो तुमसे मोहब्बत करते थे, जो तुमसे रोजाना मुलाकातें किया
कर के खाना खाया करते थे, जिनसे तुम अपनी जिंदगी के मामलात तय किया करते थे, अगर कयामत के दिन हमसे पूछ लिया गया तो मुसलमानों हमारा सर तो शर्मिंदगी के मारे उठ नहीं पाएगा। इसलिए मुसलमानों हमें डर है उस वक्त का कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पकड़ हो जाए। आप हमारे भाई, हम आपको भी बताना चाहते हैं, आपको भी बचाना चाहते हैं कि आप भी अपने रब की पकड़ से बच जाएं। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है मुसलमानों, अगर रब पकड़ फरमाने पे आया तो उस पकड़ से कोई बचा नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। आपको मालूम नहीं है कि मौला जब पकड़ फरमाता है तो बड़े बड़े बादशाह उन्हें मुंह गिर जाते हैं। नमरूद एक मच्छर की तार नहीं ला सकता है। जब मौला पकड़ फरमाता है तो फिरौन भी डूबते डूबते कह जाता है कि बेआमन तो बिरब्बी हारून व मूसा, कि मैं मूसा के रब पर ईमान लाया। उसकी पकड़ से कोई बच नहीं सकता। मौला कुरान में फरमाता है, इन्ना बख्श रब्बी का लशदीद, ऐ लोगों सुन लो मेरी पकड़ इतनी सख्त है कि तुम बच नहीं सकते, तुम बच नहीं सकते मुसलमानों उस पकड़ से जब तुम बच नहीं सकते। आज मुसलमानों किसी चोर को ये मालूम हो जाए ना, किसी चोर को ये मालूम हो जाए कि इस घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, या इस दुकान में, इस मकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, या बैंक में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो आपको मालूम है जरूरत नहीं करता है जाने की। उसको मालूम होता है कि अगर मैंने कुछ चुरा लिया, अगर मैंने डाका कर लिया, मैंने अगर यहाँ से माल निकाल लिया, तो वो जो कैमरे लगे हुए हैं पूरी पिक्चर दिखा देंगे मेरी, पूरा बता देंगे कि कहाँ से आया था, किधर किधर से माल निकाला था, किधर किधर को भाग करके गया है। मैं पकड़ जाऊंगा, वो हिम्मत नहीं करता, उसको डर हुआ करता है, यकीन नहीं होता, उसको सिर्फ यह होता है कि मैं पकड़ा जा सकता हूँ, तो चोरी नहीं करता, उस पकड़ से बचा करता है। लेकिन मुसलमानों ये डर नहीं है बल्कि यकीन है। मौला फरमाता है तुम मेरी पकड़ से बच ही नहीं सकते, ऐसी पकड़ के जिससे बच नहीं सकते। तो मुसलमानों तुम कैसे जरूरत कर सकते हो, तुम कैसे जरूरत करते हो गुनाह करने की, तुम कैसे जरूरत कर सकते हो सट्टा लगाने की, तुम कैसे जरूरत कर सकते हो गाने बाजे की। समझो समझो मुसलमानों, बताना चाहता हूँ ये पैगाम है मुसलमानों, समझिए। आज गौसे आजम की महफिल में आ गए, बता दो जमाने को कि हम गौसे आजम के सच्चे गुलाम हैं, हम ही तो है सच्चे वफादार। मुसलमानों तुम औलिया अल्लाह के मानने वाले हो। आज तुम्हें देख करके न जाने लोग क्या क्या कहते हैं, तुमसे नहीं कहते, हमसे लोग कहते हैं अरे तुम सिर्फ गाड़ियों पर तकरीर करते हो, सिर्फ तुम बिरयानी की फजीलत बताते हो, सिर्फ तुम हलवे के बारे में बताते हो, सिर्फ तुम पूरियों की फजीलत बताते हो, सिर्फ तुम मुहर्रम का खिलड़ा बताते हो, बाकी उनकी सीरत नहीं बताते। जवाब हमें देना पड़ता है मुसलमानों, तुम समझो हम बताना चाहते हैं कि मुहर्रम का खिचड़ा भी जरूरी है, 11वीं की बिरयानी भी जरूरी है, लेकिन इन सबसे भी ज्यादा अगर जरूरी है तो है नमाज, इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है वो है गुनाहों से बचना, इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है तो अपने आका की हर हर सुन्नत पर अमल करना। मुसलमानों समझो समझो, मैं बताना चाहता हूँ फौरन तौबा करिए, सच्ची तौबा करिए। जितने भी ये हराम काम के अड्डे हैं सबको आग लगा दीजिए। आप इसलिए नहीं आए, आप फिल्म ड्रामों को आम करने के लिए नहीं आए, बल्कि आप तो सिनेमा घरों में ताले लगाने के लिए आए हैं। आप शराब की फैक्ट्रियों को आबाद करने के लिए नहीं आए, बल्कि उनको हाथ में मिलाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। अरे मुसलमानों मेरे आका भी इसी दुनिया में तशरीफ लाए थे, मेरे आका ने इसीलिए आपको बता दिया। समझो मुसलमानों, बताना ही चाहता हूँ गौसे आलम की तालीम आपके लिए ये है। मैं बताना ये चाहता हूँ अपने समाज का जायजा लेकर के देखिए, बचिए मुसलमानों बचिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मोबाइल में भी गाने ना सुनिए, तकरीरें सुनिए, नाते सुनिए। अरे सो जाइए नाते सुनते सुनते, सो जाइए नबी का नाम लेते लेते। नबी का नाम लेकर के सुनेंगे तो इंशाल्लाह रात में आका के ख्वाब में ज़ियारत भी हो जाएगी। लेकिन गाने सुनकर के सुनेंगे तो कभी क्या होगा कि शैतान आकर के तेतुआ दबाएगा, कभी डरावने ख्वाब आएंगे, कभी तुम्हारे ख्वाब में भूत, कभी पीरीत, कभी जिन्नात, कभी मकरो फरेब के सौदागर तुम्हारे ख्वाब में आएंगे, तुम्हें आकर के परेशान करेंगे। लेकिन जब तुम नबी का नाम लेकर के सोओगे तो किसी में ताकत नहीं है। कैसे सोना चाहिए? आओ मुसलमानों, बरेली से सब कुछ मिलता है, बरेली से ये भी मिल रहा है कैसे सोना चाहिए। बरेली के आला हजरत के साहबजादे मौलाना हुजूर मुफ्ती आलम हिंद फरमाते हैं कि कैसे सोना चाहिए। फरमाते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते हाथ जी वो ले ले चार सो गया। नहीं सोए नहीं, सब जग गए नींद में बहुत खत्म कर देते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।
नवाजते थे, मोहब्बत किया करते थे मुसलमानों। इसलिए मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। हालांकि आज अल्लाह का फजल, आप लोगों की दुआएं ऐसी हैं मुसलमानों कि किसी को अगर तस्वीर चाहिए होती है तो 2-3 महीने पहले राब्ता करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मुझे कई जगह राजस्थान में बहुत दूर अजमेर के भी आगे जाना है, दिल्ली में भी ऐसा। ये सब आप लोगों की दुआएं, मैं आपको इसलिए कभी भूल नहीं सकता। सच्चे लोग वही होते हैं जो अपने मोहसिन को ना भूले। आप ही यहाँ के बढ़ाने वाले, आप ही यहाँ खड़ा करने वाले। हालांकि मेहनत हमारी जरूर है, लेकिन आपका साथ भी है। आपके साथ को इसलिए कभी भूला नहीं जा सकता। आपकी मोहब्बत है, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी जिंदा रखे ईमान के साथ। अल्लाह तबारक व तआला इन सच्चे लोगों की वफादारी में जिंदा रखे। इन्हीं का नाम लेते लेते हम सबको मौत नसीब फरमाए। मैं बताने ये चाह रहा हूँ मुसलमानों, अगर सुनना है तो नाच सुनिए, अगर कुछ पढ़ना है तो मुसलमानों अखबार मत पढ़िए, कुरान पढ़िए। अगर कुछ सीखना है तो मुसलमानों सब कुछ सीखिए। आप हिंदी भी सीख सकते हैं, आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं, आप संस्कृत भी सीख सकते हैं, आप बायो फिजिक्स केमिस्ट्री भी सीख सकते हैं। सब कुछ सीखिए। बायो भी अच्छी है, केमिस्ट्री फिजिक्स भी अच्छी है, इंग्लिश और हिंदी भी अच्छी है। लेकिन मुसलमानों अगर सबसे अच्छी कोई चीज है तो वो कुरान है। अगर सबसे अच्छी कोई चीज है तो वो हदीस रसूल है। सुनो, कुरान याद करो, हदीस सीखो, हदीस याद करो। इंशाअल्लाह जब तुम हदीस सीखोगे, जब तुम कुरान सीखोगे मुसलमानों, तो ये कुरान तुम्हारी कब्र में भी काम आएगा। हमने रिवायतों में पढ़ा वो लोग जो दुनिया में कुरान पढ़ते थे, मुसलमानों रात को सूरह मुल्क की तिलावत करके सोया करो। काय की तिलावत? सूरह मुल्क शरीफ की। सूरह मुल्क कुरान मजीद के कौन से बारे में जरा बताएगा कोई मुझे? सूरह मुल्क। अब मुसलमानों क्या करूं, ये भी बड़े अफसोस की बात है। हमें यही नहीं मालूम कि कुरान पढ़ा कैसे जाता है, कुरान के पहले बारे का क्या नाम है, कुरान के दूसरे तीसरे बारे का क्या। कितने अफसोस की बात है मुसलमानों, आपसे कुरान पढ़ना नहीं आता, इससे ज्यादा अफसोस की बात कोई हो नहीं सकती मुसलमानों। सही बात यह है, कुरान मजीद के 29वें बारे में सूरह मुल्क है। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, अरे लोगों तुम रात को रोजाना सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत कर लिया करो। सूरह मुल्क की जब तिलावत करोगे, सूरह मुल्क जब तुम पढ़ते पढ़ते इस दुनिया से जाओगे तो मेरे आका फरमाते हैं जब तुम कब्र में जाओगे तो अकेला महसूस नहीं करोगे, बल्कि यही सूरह मुल्क जिसकी तुम दुनिया में तिलावत किया करते थे तुम्हारी साथी बनकर तुम्हारे पास आ जाएगी और कहेगी आज मैं घबरा, तेरे घर चले गए, तेरा बाप चला गया, तेरा भाई चला गया, तेरा दोस्त चला गया, ये सब चले गए, लेकिन मैं नहीं गई, मैं आ गई तेरा साथी बन करके। आज परेशान मत हो, घबरा मत, आज मैं तेरी तन्हाई की साथी हूँ। उसकी कब्र में फौरन उजाले कर दिए जाते हैं, अंधेरे दूर कर दिए जाते हैं और कहा जाता है परेशान ना हो, परेशान ना हो। मुसलमानों बाल बुजुर्गों के बारे में मालूम हुआ कि जब उनको कब्र में लिटा करके दफना करके लोग आ गए तो कब्र से आवाज आ रही थी। आवाज देखा, काय की आवाज? वही आवाज जो दुनिया में सूरह मुल्क पढ़ते थे। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। वही जो दुनिया में सूरह मुल्क पढ़ करके गया था, वही जब कब्र में दफन करने के बाद सब आ गए, सब आ गए, सब आ गए। बाप भी आ गया, बेटा भी आ गया, दोस्त भी आ गया, मोहब्बत का दम भरने वाले तमाम अजीज आ गए, सब आ गए, सब छोड़ करके आ गए। लेकिन उस वक्त में भी अगर किसी ने नहीं छोड़ा तो उस चीज का नाम है कुरान। कुरान ने नहीं छोड़ा। पता चला आवाज आ रही कि काहे की आवाज? तो वही जो दुनिया में सूरह मुल्क पढ़ा करता था, वही मुद्दा कब्र में भी सूरह मुल्क पढ़ रहा है और दिल दे रहा है। लोग घबराते हैं कब्र में मुसलमानों, कब्र से परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो नबी का गुलाम होता है मुसलमानों, वो कब्र में भी पहुंच करके कुरान करीम की तिलावत से अपने दिल को बहला लिया करता है। अरे लोगों, इसलिए हमेशा हमेशा कुरान करीम की तिलावत किया करो। अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा प्यार करना है तो कुरान से करो मुसलमानों। कुरान से अगर प्यार करोगे मुसलमानों तो हकीकत ये कि ये कुरान तुम्हें जमाने में भी इमाम बना देगा। और कब्र हश्र के जब आलम आएगा तो उस कब्र हश्र के आलम में भी मुसलमानों ये कुरान तुम्हारी रहनुमाई करता हुआ नजर आएगा। तो अब हदीस का तर्जुमा सुनाते हैं जी। हदीस तो बहुत लंबी बड़ी थी और आप सही बात सुनिए। अगर मैं उसकी तफसील वजाहत करूंगा हदीस शरीफ की तो अभी चाहिए कम से कम 3 मिनट, लेकिन आप जब भी कर रही 3 नहीं, मैं 30 मिनट में खत्म करूंगा गुफ्तगू अपने। कितने? 30 मिनट में, और इंशाल्लाह आपको पता नहीं चलेगा। तो कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए। अच्छा एक बात और है,
हमने देखा सुनने वाले हर दूसरे तीसरे छठे पांचवें महीने में बदल दिया करते। 6 महीने पहले कोई सा गाना, 6 महीने के बाद कोई सा गाना, कोई सी गजल, कोई सी फिल्म वगैरह वगैरह छोड़ देते हैं उसको। हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूँ, छोड़ देते नहीं चीजें इस्तेमाल करते। अगर अच्छा तो 6 साल ये 6 महीने पुराना भी गाना बजाने में क्या पुराना मजा रहा है, नया बजा रहा है, हालांकि बड़ा गलत काम है। लेकिन एक बात समझिए मुसलमानों, 6 महीने के बाद, 6 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल, 20, 50, 100 साल के बाद एक चीज खत्म हो जाती है, उसका नामो निशान तक नहीं रहता। अरे यहाँ तक कि मुसलमानों गानों बाजे की बात छोड़िए आप हजरात, लोगों की जबानें बदल जाती हैं, जबानें बदल जाती हैं। 50 साल में, 100 साल में, अगर 100 साल पहले का कोई इंसान कब्र से उठ करके आ जाए और वो आप लोगों को देख ले, आप कैसे बोल रहे हैं, मैं तो अगर 100 साल पहले मरा हुआ इंसान वापस आ जाए तो दुनिया के इनकलाब देखेगा तो खुद देख करके मर जाएगा। वो इनकलाब पैदा हो गया इन 100 सालों के अंदर मुसलमानों कि मुर्दे को अजीब हो गरीब तरीके से लगेगा कि हो क्या रहा है दुनिया में। मैं जब मरा था तो कुछ भी नहीं था, आज सब कुछ है मुसलमानों। बताना ही चाहता हूँ मुसलमानों, 5 साल, 10 साल, 20, 50, 100 साल सब कुछ बदल जाता है। बेशक 100 साल पहले की जबान को कहने लगता है तो समझ में नहीं आती है। अजी 100 साल पुरानी कोई लिखावट ले आए ना तो लोग पर्चा लिए हाथ में दिखाई पड़ते भाई किससे पढ़वाएंगे, किससे पढ़वाएं, कौन है पढ़ने वाला है इसको। 100 साल में बदल जाता है सब कुछ। अरे मुसलमानों ऐसे समझिए, अगर मैं गालिब के 200 साल पुराने नज़में आपको सुनाने लगूं तो आप कहेंगे कि गालिब की शायरी समझ में नहीं आती है। दर्द की दर्द भरी गजलें अगर आपके सामने बयान करने लगूं तो आप कहेंगे कि दर्द की दर्द भरी नज़में दर्द को जा रही बंद कीजिए। अब मैं आपको मीर अमन की बागो बहार सुनाने लगूं 200 साल पुरानी तो आप कहेंगे कि समझ में नहीं आ रही है। लेकिन वारे कुरान, वारे हदीस मुझे ना 10 साल हुए, ना 50 साल, ना 100 साल हुए, ना 100, 200, ना 500, ना 1000 साल हुए, बल्कि 1400 साल से ज्यादा होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आज भी कुरान पढ़ने वाला जब कुरान पढ़ा करता है, आज भी जब हदीस पढ़ने वाला हदीस पढ़ा करता है तो कोई भी सुनने वाला ये नहीं कहता ये कुरान हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ये हदीस हमें समझ में नहीं आ रही है, ये कुरान हमें पुराना मालूम हो रहा है, ये हदीस हमें पुरानी मालूम हो रही है। बल्कि मुसलमानों हकीकत बात ये है कि अच्छा कुरान पढ़ने वाला हो और वो नमाज पढ़ा रहा हो तो दिल ये चाहता है ये कुरान पढ़ता रहे, कुरान पढ़ता रहे और कुरान को सुनते रहे, हम कुरान को सुनते रहे। यही कुरान की शान है मुसलमानों। ज़बानें बदल जाती हैं, इंसान के रहने सहने का अंदाज बदल जाता है, गुफ्तगू के अंदाज बदल जाया करते हैं। लेकिन मुसलमानों इन 1400 सालों के अंदर अगर कुछ भी ना बदला, अगर कुछ भी ट्रेंडिंग नहीं तो इस चीज का नाम है कुरान, उस चीज का नाम है हदीस रसूल। मुसलमानों यही हदीस रसूल है कि जिसका कुछ भी नहीं बदला, जिसका कुछ भी नहीं बदला। मैं वो सुना रहा हूँ, मैं वो सुना रहा हूँ आपको। और मुसलमानों को ये यकीन रखे, जो यकीन रखे, सोचे कि कुरान 1400 साल पहले जैसे हमारे हबीब के कल्बे अथर पर नाजिल हुआ था वैसा नहीं है तो उसके बारे में क्या हुक्म है। तो सुनिए उलमाए किराम का फैसला सुनिए, बात में बात बताऊंगा। उलमाए किराम फरमाते हैं अगर ऐसा कीदा रखता है इंसान कि 100 या 1400 साल पहले जो कुरान था अब वैसा नहीं है, अब वैसा नहीं है, बल्कि जबर जेर पेश 1 या 2 आयतों की तब्दीली कर दी गई है या कुछ घटा दिया गया है या बढ़ा दिया गया है। तो सुनो मुसलमान उलमा का फैसला। उलमा इरशाद फरमाते हैं ऐसा अकीदा रखने वाला दारे इस्लाम से खारिज हो गया, वो मुसलमान से बेईमान हो गया, वो काफिर और मुशरिक हो गया। आपने सुना नहीं था, तकरीबन हो गए उसको 1.5-2 साल। तारिक अब्दुल्ला नाम है एक साहब का, जमाते हदीस देवपल्ली जिनको कहते हैं रामपुर में उसने एक तकरीर हालांकि उसकी वो मुरादाबाद की थी, लेकिन उसने मुरादाबाद की एक तकरीर में ये कहा था कि कुरान 1400 साल पहले जैसा नाजिल हुआ था वैसा नहीं है। तो तमाम उलमाए किराम ने, यहाँ तक के हमारे उस्ताद मोहतरम काजी कुजात हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद शाहिद अली मियां साहब किबला दामत बरकातुहुल कुर्सिया ने कुफ्र का फतवा दिया था उसके खिलाफ। बरेली से फतवा मंगाया गया था तो बरेली से कुफ्र का फतवा आया था, मुरादाबाद से फतवा मंगाया गया था, मुरादाबाद से भी उसके बारे में कुफ्र का फतवा आया था। उसने सिर्फ इतना कहा था कि कुरान जैसा नाजिल हुआ था अब वैसा नहीं है। तो उस मुसलमानों उलमा ने मुत्तफिका तौर पर फैसला दिया कि ऐसा घिनौना गंदा अकीदा रखने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, वो यहूदियों का दलाल है, वो अनेक अमरीकियों का। मुसलमानों वो सच्चा वफादार मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान सच्चा वो है तो कुरान की एक
सूरत को, कुरान के एक एक रुकू को, कुरान की एक एक आयत को, कुरान के एक एक लफ्ज को सच्चा जाने वो सच्चा मुसलमान है। मुसलमानों, यही सच्चा कुरान सुना रहा हूँ, यही सच्ची हदीस सुना रहा हूँ, उस सच्चों के मुंह से सुना रहा हूँ। रावी है हजरत अबू हुरैरा, नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अबू हुरैरा सरकार से रिवायत करते हैं, हजरत अबू हुरैरा सरकार से रिवायत करते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अच्छा, ये हजरत अबू हुरैरा जो एक बात बताऊं आपको, सबसे ज्यादा जो हदीसें मरवी हैं, सबसे ज्यादा जो हदीसें मरवी हैं वो हजरत अबू हुरैरा ही से मरवी है। सबसे ज्यादा 5000 से भी ज्यादा हदीसें आपसे मरवी हैं। लेकिन मुसलमानों, एक बात बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पर बैठे बहुत सारी बातें सुनते हो, भूल जाते हो। हजरत अबू हुरैरा भी भूल जाते थे, आते थे सरकार की खिदमत में, बैठते थे, बातें सुनते थे दीन की, लेकिन याद नहीं रहता था। सरकार की बारगाह में हाजिर हो, बोले या रसूल अल्लाह, मैं याद करने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, मेरे आका कोई ऐसा नुस्खा दे दीजिए कि मैं जो भी सुना करूँ मुझे याद हो जाया करे। या रसूल अल्लाह, मैं बहुत याद करना चाहता हूँ लेकिन मेरे आका मैं भूल जाता हूँ। मेरे आका मुस्कुराए, इरशाद फरमाए, अच्छा बेफिक्र रहो, तो हमारी खिदमत में आ गए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, दामन फैलाओ। दामन फैलाया, आका ने अपना खाली हाथ, कुछ था नहीं हाथ में, आला हज़रत फरमाते, देखिए सच्चे की शान ये है, सच्चे की शान ये है। एक तकरीर वसीम को मैंने दे दी है मोबाइल में अपनी, उसमें सिर्फ मैंने ये बताया है कि आला हज़रत का शेर और कुरान में अल्लाह ने कहाँ फरमाया, उसके आला हज़रत ने उसका तर्जुमा किया, वो बात मैं फिर बताऊंगा। लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इश्क वाली बात देखिए, सरकार का वो खाली हाथ है, हम आप कहेंगे खाली हाथ, आला हज़रत ने खाली हाथ को देखा, लेकिन क्या कहा, फरमाते हैं मालिके कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, उनके खाली हाथ में। और इरशाद फरमाते हैं, हाथ जिस्म टूटा, हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया, हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया, मुझे बारे समाहत पे लाखों सलाम, मुझे बारे समाहत पे लाखों सलाम। ये आका की शान बयान फरमाई। मेरे आका ने अपना खाली हाथ से खाली था बिल्कुल। मुसलमानों, हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, अबू हुरैरा का दामन फैलाओ। अबू हुरैरा ने दामन फैलाया, मेरे आका ने खाली हाथ बढ़ाया। वो बढ़ाने के बाद मेरे आका ने वो बंद मुट्ठी जो खाली मुट्ठी थी, मेरे आका ने वो खाली मुट्ठी हजरत अबू हुरैरा के दामन में खोल दी। मुसलमानों कुछ नजर नहीं आया था कि क्या डाला। अब हजरत अबू हुरैरा चले गए। मुसलमानों कुछ दिनों के बाद आए, बोले या रसूल अल्लाह पिता का उम्मी बाबी, ऐ मेरे आका, जब से आपने मेरे दामन में वो खाली हाथ डाला है, ऐ मेरे आका, जब से मैं जो भी सुना करता हूँ उसका एक लफ्ज़ भूला नहीं करता, ऐ मेरे आका, मुझे सब कुछ याद हो जाया करता है। शायर ने फरमाया कि तलब से भी उनको सिवा दे रहे हैं, तलब से भी उनको सिवा दे रहे हैं, जो आका के दर पर। आगे आप बोलेंगे, साथ में बोलेंगे, इसे आपका अगर अकीदा है तो साथ में बोलेंगे, तलब से भी उनको सिवा दे रहे हैं, जो आका के दर पर सदा दे रहे हैं, जो आका के दर पर सदा दे रहे हैं। आज बीमार होते हो मुसलमानों, तो बीमार होते हो तो क्या होता है, हॉस्पिटल में भर्ती होते हो, कभी एम्स में जाते हो, कभी कहीं जाते हो, कभी कहीं जाते हो, डॉक्टर ला इलाज कर देते हैं, जवाब दे देते हैं कि इस मर्ज का इलाज नहीं है। लेकिन आओ सुनो मुसलमानों, वो इलाज कि जिसके इलाज से दुनिया के डॉक्टर आजिज आ जाएं, उसका भी इलाज मेरे आका के दरबार में होता है। आओ सुनो मुसलमानों, जमाने के सारे मरीजों से कह दो
मदीने में शिफा दे रहे हैं, तलब से भी उनको शिफा दे रहे हैं, जो आका के दर पर सदा दे रहे हैं। फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं कुछ भी नहीं भूला, कुछ भी नहीं भूला, वो खाली हाथ पड़ा, सब कुछ याद हो गया। 56 कुछ की दी भाभी जो बंदी कमी हो बोलेगी। अल्लाह तबारक व तआला इनकी सोबत से बचाए। कहते हैं कि नबी से मांगना शिर्क व बिदअत व हराम है। ये कहते हैं अगर जो भी मांगना है वो अल्लाह से मांगो, ना गौस से मांगो, ना वली से मांगो, ना ख्वाजा से मांगो, ना वली से मांगो, ना नबी से मांगो। इन कमीनों का अकीदा ये है। लेकिन आओ मुसलमानों, वहाबियों का अकीदा ये है जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगो, लेकिन सहाबियों का अकीदा ये है जो मांगना है नबी से मांगो। क्योंकि मुसलमानों, सच्ची बात ये है कि रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये है। अरे मुसलमानों, कायनात मौला की है, बांटते मुस्तफा है। इसी को आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, वल्लाहु मोतीवाना कासिम, मौला तबारक व तआला का फरमाने वाला है, मौला तबारक व तआला मालिक है तमाम नेमतों का, लेकिन इन नेमतों को बांटने वाला मैं हूँ, मैं बांटने वाला हूँ। और सुनो सुनो मुसलमानों, भाइयों का अकीदा ये कि नबी से ना मांगो, सहाबियों का अकीदा ये कि अगर अकल भी मांगनी है तो नबी से मांगो। बात बताइए मुसलमानों, मेरी एक बात समझ में हो रहा है कि अकल किसी को दी जा सकती है? कोई बेवकूफ हो, कोई किसी डॉक्टर के पास पहुंचे वो, और जाने के बाद ये कहे कि भाई मैं बेवकूफ हूँ, मुझे अकलमंद बना दो, क्या ऐसी दवाई है? आप बताइए। अच्छा, ऐसी दवाई नहीं है। किसी को कुछ याद नहीं रहता, भूल जाता है, वो बिल्कुल कुंद जहन है। वो जाकर डॉक्टर से गए, मुझे तेज दिमाग कर दो, कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो, कोई ऐसी टेबलेट दे दो कि उस टेबलेट का फौरन असर ये हो कि मैं जो भी याद करूँ याद हो जाए। कि ऐसा हो सकता है कि अकल दी जा सकती, बात ही आ सकती है? मुसलमानों सही बात है कि हमें कप नजर आ रहे हैं नीचे रखे हुए, एक कप उठा कर हमने आपको दे दिया, 2 माइक आप करें हमने तो आपको उठा करके दे दिया, 2-4 जर्सियां हैं हमारे पास, आपने एक दे दिया आपको। मतलब जो चीजें नजर आती हैं, पैसे हमारे पास, अपने पैसे हमें दे दीजिए आपको। मुसलमानों, जो चीज नजर आती है, जो हमारे हाथों में होती है, हम उसको एक दूसरे को दे सकते हैं। लेकिन अकल ही ऐसी चीज है कि मेरे पास ज्यादा है, आपके पास कम है, अगर